हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Indian as a foreign policy. There is a most important chapter arrive here, but the first point is most important also, the basic objective and principles of foreign policy. What do you mean to basic objectives? And the next is the principle of foreign policy. There are principle. There is a preservation of the national interest, achievement of the world peace, is disarmament and the independence of Afro-Asian nation has been two important objectives of Indian as a foreign policy. And these objectives are sure to be achieved through their some principle by is a Panchsheel, a non-agreement, anti-colonialism, anti-imperialism, and anti-racialism, and the strengthness in the UNA. It would be is be fightings of the expanding this principle. There is a most important principle right there here, a Panchsheel, non-agreement, and the anti-colonialism, anti-imperialism, anti-racialism. There is the most important here. The first point arrive here, a Panchsheel. What do you mean to hear a Panchsheel here? The Nehru was a belief in the world peace. He has understood the linkage between the peace for development and the survival of mankind. He has seen the destruction causing by the two world war, and therefore realized that for the progress of a nation a long spell of peace was needed. In its absence of social and economical priorities relating to the development tend to get a push to be a background. The production of the nuclear weapon is a strengthness, is a Nehru, is a faith in the peacefully philosophy, and even more. Hence, give to the is the utmost of important to the world peace in his policy planning. India has a desire peaceful and friendly relation with all the countries. A particular there are big powers and then the hood as a nation with the signing and the agreement with their China on April 28, 1954. India advocate is arranged to be five, guiding a principle known as the Panchsheel to be a conduct of the bilateral is a relation. It includes the following Panchsheel here. There is the most important Panchsheel is a point here. The first, mutual respect for the each other's and territorial integrity and sovereignty, and the mutual non-aggressions. And third here, mutual non-interference in the each other as an internal affair. And fourth here, equality and mutual benefit. And the fifth here, peaceful coexistence. There is the most important Panchsheel is a principle here. The Panchsheel agreement is include the best of principle peacefully coexistence with their neighborhoods. It is on a important component of Indian and foreign policy. The one most important here, a non-agreement. There is the foreign policy of India. There is a non-agreement. It is the most important here. The non-agreement has been regarded as a most important feature of Indian as a foreign policy. Non-agreement aim to be maintained on national and independent in a foreign affair by not joining any military alliance forced by the USA as a Soviet unit in the aftermath of the Second World War. There is a non-agreement was a neither neutralizes and nor is a non-violent, nor isolationism. It is was a dynamic concept which meant not committing to any military bloc but taking on an independent stand on international issue according to the merit of each case. The policy of non-agreement won many supporters in the developing countries as it is provided an opportunity to them for protecting their sovereignty as also returning is there is a freedom of their action during to the tensions are called war period. India is a play an important role in a foreign to the non-agreement movement. Their name, non-agreement movement. Their name, the formation of the Nehru. The concept of NAM emerged through the gradually process. Nehru took their invented to the convent. There is a Asian Relation Conference in New Delhi in 1947. Later on, the conference of 29 countries of Asia and Africa was held at Bangkok, Indonesia in 1955. This was the first gatherings
of its a kind which is pledged to be work together for a colonial liberation, peace and cultural, economics and political cooperation. The Bandungs of the Baghdad and the 1961 were the first NAM conference was held was the logically processed to the project and alternative to the Cold War bloc is a politics and a creation of newly independent country of their independent and sovereign right. And Cold War was intense or rival to the between to the USA and Soviet Union without of fighting a direct war to attract allies in Africa. Asia and Latin America, it is started soon after the Second World War and continued for the 45 year. And these two big countries become a two opposite pole and the known as the East and West. The world politics is a revolved of around of these two pole. Thus, their world become a bipolar. There is a two poles here. This is called to the bipolar. There is a Soviet Union and USA. That is called to the bipolar. Among there is a non-agreement, there is a Nehru had involved the special relationship with the President Tito of their Yugoslavia and the Nazar of Egypt. And these three are regarded as the founding is the fathers of the non-agreement movement. That is the most important here. They are father of the non-agreement movement. The non-agreement movement was a group of the newly independent state who refused to accept the decade of the former is a colonial master and decided to act according to their own judgment on issue of international concern. There is a non-agreement movement is anti-imperialist of in approach. India as a prime architect of non-agreement and as one of the leading members of the non-agreement movement has taken as an active part in its growth. There is the most important. The non-agreement movement is a providing all member states, regardless of size and importance, an opportunity to the participate in a global decision making and world politics. India is a host to 7th is a NAM is a summit at New Delhi in 1983. India hoped the NAM took up their case of development and discriminant and is a Palestine is a question. There is the most important here. The season NAM was a product of the Cold War, a scenario and their bipolar world. Many scholars have questioned the relevance of the NAM after end of the Cold War and demise of the Soviet Union. However, even in the present scenario, the NAM has a significant role of play. The first with the disintegrations of Soviet Union, the world faced threat from a unipolar world. The NAM can act as a check against USA dominance. Secondly, the developing North and developing South world are divided over several economical issues. The NAM remain a very relevant is a form the third world war country engage the developed is a nation and productivity dialogues. Moreover, the NAM can prove to be a powerful instrument for a South and South cooperation. Such as a thing is essentially if the third world country are increasing their beginnings of power, vice versa, there is a developed world. India continue to take active part in a non-elegant is a movement even after the end of Cold War. Finally, the developing countries united under to the form of NAM have to fight from the reform UNA and change it is according to the requirement of 21st century. The next year, anti-imperialism and anti-racial anti-colonialism. There is the most important here, anti-imperialism, anti-racial and anti-colonialism. India has is opposed of colonialism and racialism. There is the most important. India opposes to colonialism and racialism. Whenever any injustice happened, India arises here a voice. For instance, is a favor of Indonesia nationality and fighting to the Dutch colonialism in 1947 against South Africa illegal occupation of the Namibia and its influence is apparent to the policy of South Africa. India is fully supported
inclusion of communist China in a United Nation. That is the most important here. The next here is the most important strengthenings of UNA. There is UNA is the most important strengthening here. India has a way view UNA as a vehicles for a space or from a peaceful change in the world politics. Apart from this, India has a way expected UNA to the actively is involved country to the moderate their difference through the text of negotiations. And further, India has advocate active role for the UNA is development effort of third world countries. India has is pledged for a common united front of a third world country in the UNA. It is a belief that is a non-agreement world by which 12 of their massive number could be play a constructive and meaningful role in the UNA by stopping the superpowers from using this world body their own design. As earlier as 1950, India is linked to the reduction of agreement with a large global of development here. The UNA has a fact is a play a key role in a preservation of world peace by helping in the is a decolonization process. There is the most important here, the helping in the decolonization process by providing humanitarian and developmental assistance and through is a peacekeeping. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण यानी विदेश नीति। देखिए ये चैप्टर हमारा विदेश नीति जो है कई मानने में इम्पोर्टेंट है। अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इसमें बहुत अच्छी समझ है। कहते हैं विदेश नीति के मूल्य उद्देश्य और सिद्धांत क्या है। विदेश नीतियों के उद्देश्य और सिद्धांत जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो। कहते हैं राष्ट्रीय हितों का ध्यान और विश्व शांति की प्राप्ति, निःशस्त्रीकरण और अफ्रीका एशियाई देशों की स्वतंत्रता आदि भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। यानी भारत सदैव ही जो है विश्व शांति का वकालत करता है। यानी भारत सदैव ही जो है शांति का ही दूत के रूप में अपने आप को विश्व के समक्ष रिप्रेजेंट कर रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति कुछ सिद्धांतों के माध्यम से की जा सकती है, जैसे कि पंचशील। पंचशील सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रक्रिया थी जो कि भारत अपनाया था। उसके बाद भारत ने जो है गुट निरपेक्षता को प्रायोरिटी दी, क्योंकि गुट निरपेक्षता में ये बात सम्मिलित थी कि वो किसी भी देश में स्वतंत्र जो है सम्मिलित नहीं होगा, वो अपने ही स्वतंत्र हुए राज्यों के साथ जो है आगे बढ़ेगा। औपनिवेशिक विरोधी यानी औपनिवेश करने का जो विरोधी है उसके भी जो है इसके रिगार्डिंग भी इसने कार्य किया। साम्राज्यवाद या विरोधी यानी साम्राज्यवाद के सदैव विरोधी रहा। रंग भेद विरोधी की नीतियों सहित संयुक्त राज्य संघ की मजबूत करना भारत के सबसे विदेश नीति में से एक माना जा सकता है। इन सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कहाँ परिवर्तित होगा ये हम अभी देखेंगे और समझेंगे। यानी भारत सदैव ही विदेश नीतियों का जो है मजबूती से पालन किया है और इसको फ्यूचर में भी करता रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा पंचशील क्या है और पंचशील में हमें क्या देखने को मिल सकता है। हम अब आ गए हैं पंचशील के ऊपर। देखिए पंचशील क्या है। पंचशील आपने कई जगहों पे सुना होगा, लेकिन पंचशील जो है कुछ समझौता है जो देशों के साथ की गई थी। कहते हैं नेहरू विश्व शांति के पक्षधर थे और सदैव नेहरू यही चाहते थे कि विश्व जो है शांति से अपना जीवन यापन करे, भाईचारे के साथ अपना जीवन को निभाए। उन्होंने विकास के लिए शांति और मानव जाति के अस्तित्व के बीच की कड़ी को समझा। वो 2 विश्व युद्धों के कारण हुए विनाश को देख चुके थे और जानते थे कि एक देश की प्रगति के लिए दृढ़ शांति काल की आवश्यकता होती है, क्योंकि नेहरू जी आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों में ही अपना जो है महत्वपूर्ण जो योगदान भी दिए थे और देखे भी थे और उनके समक्ष ये सारे काल आए भी थे। बिना शांति के विकास संबंधी सामाजिक और आर्थिक जो है प्राथमिकता पीछे धकेल दी जाती है। ये तो बहुत जनरल सी बात है, ये तो आपको भी पता है कि शांति के विकास के बिना कोई भी चीज़ को आगे लेके बढ़ना संभव नहीं है। कहते हैं परमाणु हथियारों के उत्पादन के कारण नेहरू की शांति के दर्शन का विश्वास और अधिक बढ़ गया, क्योंकि परमाणु हथियार का बनने का अर्थ था कि विश्व जो है एक नई खतरे की ओर बढ़ रहा है और इसका जो है परिणाम आपने देखा भी होगा। हिरोशिमा नागासाकी पे जो है इसका जो है बहुत बड़ा विनाश भी हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने
निर्धारण में विश्व शांति को सबसे अधिक महत्व दिया। यानी नेहरू जी देखा जाए तो उन्होंने शांति के पक्षधर थे और वो सदैव ही जो है मैत्रीपूर्ण अपना जीवन यापन करना चाहते थे और देश में शांति की जो है बहाल करना चाहते थे। भारत के सभी देशों के साथ विशेष रूप से बड़े और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध की इच्छा रही है और इंडिया सदैव यही प्रयत्न करता भी रहता है। 28 अप्रैल 1954 को चीन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करने के समय भारत ने जो है आपसी संबंध के लिए पंचशील के सिद्धांत को पालन की वकालत किया। यानी पंचशील जो सिद्धांत है वो भारत और चीन के बीच एक समझौता है जो 28 अप्रैल 1954 को की गई थी, जिसमें 5 बातों को जो है महत्वता दी गई थी। वो 5 बातें क्या है देखते हैं। उस 5 बातों के अंतर्गत सिद्धांत जो थे वो थे एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। यानी एक दूसरे की क्षेत्रीय जो भी अखंडता है, जो भी क्षेत्र आता है उसका सम्मान करना और संप्रभुता की ओर सदैव बढ़ना। परंपरा अनाक्रमण करना, यानी आक्रमण एक दूसरे पे नहीं करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, यानी कोई भी देश में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है दूसरा देश को जो है हस्तक्षेप करने की जो है अधिकार नहीं दिया गया था। ये तीसरी बात थी। समानताएं और पारंपरिक हित, समानताएं सभी को मिले और पारंपरिक हित रहे, ये भी पंचशील के मुख्य सिद्धांतों में से एक था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये भी जो है 5वां रूल के अंतर्गत आता है कि शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व। दोस्तों अगर पंचशील के सिद्धांत आता है तो आपको ये 5 जो लाइन है, 5 जो शब्द दिए गए हैं उसको एग्जाम में लिखना है। यही पंचशील की 5 जो है रूल रेगुलेशन है। पंचशील जो है समझौता पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत पर सबसे अच्छा निरूपण है और यह भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक भी माना जाता है। यानी पंचशील का जो है अपना विशेष स्थान है जो हर एक पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए अग्रसर है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है गुट निरपेक्षता, यानी नॉन एग्रीमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुट निरपेक्षता, जिसको भारत ने अपनाया था। कहते हैं गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्षता का उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर विदेशी मामलों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को कायम रखना, यही गुट निरपेक्ष का उद्देश्य था। अगर आपको आ जाता है एग्जाम में गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं तो आपको सिर्फ इतना सा ही वर्ड याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्षता का उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर अपना अलग से ही स्वतंत्रता कायम रखना, यही गुट निरपेक्ष का उद्देश्य था और यही गुट निरपेक्ष का परिभाषा भी कहा जा सकता है। गुट निरपेक्ष न तो उदासीन थी और न ही तटस्थ था और न ही स्वयं को पृथक रखना था। ठीक है, गुट निरपेक्ष में उस सभी देशों को सम्मिलित किया गया जो उस समय आज़ाद हुए थे और इन्होंने न तो अमेरिका खेमा को अपनाया न सोवियत यूनियन को खेमा को अपनाया। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने में ही अपना भलाई समझा। कहते हैं यह एक शक्तिशाली परिकल्पना थी जिसमें किसी भी सैन्य गुट से कोई वचनबद्धता नहीं थी। यानी देखा जाए तो इन्होंने किसी भी गुट में सम्मिलित न होने की वचनबद्धता को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। यानी न तो अमेरिका गुट में शामिल हुए और न ही ये सोवियत यूनियन में सम्मिलित हुए। अतुल यह प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उसके गुण दोष के आधार पर जो है स्वतंत्रता रखना था। गुट निरपेक्षता की नीति को विकासशील देशों ने समर्थन भी दिया क्योंकि इससे उन देशों को जो है अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की अवसर भी मिल गया और शीत युद्ध के दौरान अपनी गतिविधियों को संचालित करने की स्वतंत्रता भी हो गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत बनाने में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी इसमें भारत का जो है बहुत ही विशेष योगदान था और ये जो थे नेहरू के जो है कूटनीति और जो है अच्छे विचारधाराओं के कारण ही गुट निरपेक्ष का जो है उदय हुआ। इस परिकल्पना का विकास धीरे धीरे हुआ और 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंधों के सम्मेलन को बुलाकर नेहरू ने इसकी पहल भी की। इसके बाद 1955 में एशिया और अफ्रीका के जो है 29 देशों का सम्मेलन बांडुंग जो था इंडोनेशिया में हुआ। यह अपने प्रकार का पहला सम्मेलन था जिसमें शांति, उपनिवेशवाद से मुक्त और सांस्कृतिक, आर्थिक
और राजनीति सहयोग की दिशा में साथ साथ कार्य करने की शपथ ली गई थी। 1961 में जो है बेल्ग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ, जिसने शीत युद्ध की गुट रणनीति का विकल्प प्रस्तुत किया तथा ये नव स्वतंत्र देशों को अपने स्वतंत्र और संप्रभु अधिकारों का प्रयोग का साहस दिया। यानी जो देश उस समय स्वतंत्र हुए थे उनको काफ़ी साहस दिया। तो ये गुटनिरपेक्ष की सबसे पहली नीति थी। यह आंदोलन शीत युद्ध के संदर्भ में एक विकल्प था, जिसे नव स्वतंत्र देशों को अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता अधिकारों के प्रयोग करने का अवसर मिल गया। यानी हर देश अपना पैरों पे खड़ा होना चाहता था, किसी भी एक खेमे में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उस खेमे में जाने का मतलब था गुलाम, और वो गुलाम दोबारा नहीं बनना चाहते थे। इसलिए सभी देशों ने जो स्वतंत्र हुए थे वो गुटनिरपेक्ष को ही अपनाया। न वो अमेरिका खेमा में गए, न सोवियत खेमा में गए, और वो स्वयं ही अपने आप को स्वतंत्र रखे, और ये बहुत बड़ी बात इनके लिए था। अमेरिका और सोवियत संघ के जो बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता के शीत युद्ध था, जिसमें आमने सामने युद्ध लड़े बिना वो दोनों अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को आकर्षित करने में लगे हुए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद आरंभ हुआ था और 45 वर्ष तक चलता रहा। आपको अगर याद होगा तो जो हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18 तक चला था, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुई थी जो है 1939 से लेकर 1945 तक हुई थी, और इसी के बाद 45 से लेकर 1991 तक जो है शीत युद्ध की दौड़ चली। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और कहते हैं कि इसमें दो खेमा थी, अमेरिका था और सोवियत यूनियन था, यानी यूएसएसआर था। दोनों का ही एक ही महत्वाकांक्षा था कि सभी देशों को अपने खेमे में लाना, और सभी देशों को आकर्षित करने के लिए ये दोनों जो थी जो है विचारों का युद्ध कर रही थी, ठीक है, और बातों का युद्ध हो रहा था, ठीक है, मीडिया का युद्ध हो रहा था। तो इसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद प्रारंभ हुआ था और 45 वर्ष तक चलता रहा, और ये दोनों राष्ट्र दो विपरीत ध्रुव बन गए थे और पूर्व तथा पश्चिम के नाम से जाने जाते थे। उस समय जो था दोनों खेमों को पूर्व और पश्चिम के नाम से जाना जाता था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। विश्व की राजनीति इन दोनों ध्रुवों के चारों तरफ घूमती थी, और इस प्रकार विश्व जो था दो ध्रुवीय बन गया था। गुटनिरपेक्ष में नेहरू ने युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के नसर के जो है विशेष संबंधों का विकास किया। इन्हीं तीनों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है जनक भी माना जाता है। निरपेक्ष आंदोलन नव स्वतंत्र राष्ट्रों के वह समूह था जिसने अपने पूर्व उपनिवेशों, स्वामियों और तनाशाइयों को जो है अस्वीकार कर दिया गया, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने का निश्चय भी किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वभाव से साम्राज्यवाद का विरोधी थे, और गुटनिरपेक्ष मुख्य शिल्पी होने और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अग्रणीय सदस्य होने के कारण भारत ने इसके विकास में एक सक्रिय भूमिका भी निभाई। यानी भारत का जो है गुटनिरपेक्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सभी सदस्य राष्ट्र को उनके आकार और महत्व के आधार के बिना ही उन्हें विश्व राजनीतिक और विश्व संबंधी निर्णय लेने के अवसर प्रदान करते थे। भारत ने 1993 में नई दिल्ली में 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक की मेजबानी की। भारत ने आशा जताई कि यह आंदोलन विकास, निशस्त्रीकरण और जो है फिलिस्तीनी के प्रश्न पर काम करेगा। यह आंदोलन क्योंकि शीत युद्ध और जो था ध्रुवीय यानी दो ध्रुवीय विश्व का परिणाम था, यानी शीत युद्ध और ध्रुवीय का परिणाम था। अंत बहुत से विद्वान शीत युद्ध और सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी परिसंगतता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहली यह कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व को एक जो था ध्रुवीय विश्व की खतरा है वो टल गया था। यह आंदोलन अफ्रीका के जो है प्रभुत्व पर अंकुश लगाने का काम भी करता है। दूसरे, विकसित उत्तर और विकासशील दक्षिण दुनिया आर्थिक मामलों में बटी हुई नजर आ रही है। यह आंदोलन तीसरे विश्व युद्ध के देशों को उनके विचार व्यक्त करने का एक सही मंच प्रस्तुत कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह आंदोलन दक्षिण के बीच सहयोग का एक सशक्त साधन बन गया है। अंत यदि तीसरे विश्व युद्ध के राष्ट्र विकसित देशों की तुलना में जो है अपनी प्रत्याशी बढ़ाना चाहते हैं, यानी तीसरी युद्ध जो हो रही है अभी देख भी आप सकते हो, ठीक है, तो कहते हैं यह आंदोलन अति आवश्यक भी था, और शीत युद्ध के अंत के बाद भी भारत इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।
अंत में इस आंदोलन के अंतर्गत आने वाली विकासशील देशों को 21वीं सदी की आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तन के लिए संघर्षशील होना ही पड़ेगा। हमारा जो अगला टॉपिक आया है साम्राज्यवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद विरोधी। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको भारत ने सदैव ही इसका जो है विरोध किया है। भारत सदैव ही उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध किया है। जब कभी कोई अन्याय हुआ है तो भारत ने अपनी आवाज़ जरूर उठाई है। उदाहरण के लिए 1947 में डच उपनिवेशवाद के विरोध, इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ताकत की लड़ाई और दक्षिण अफ्रीका द्वारा नमीबिया पर जो है अवैध कब्जा और दक्षिण अफ्रीका के बदनाम रंगभेद नीति का भारत ने सदैव ही विरोध किया है। कहते हैं साम्यवादी चीन को जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनवाने का समर्थन भी किया है। यानी भारत देखा जाए तो सदैव ही साम्राज्यवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है और इसीलिए भारत को जो है सभी देशों से अलग समझा जाता है। उसके पश्चात है संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण। देखिए संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत ने सदैव ही जो है विश्व राजनीति में शांति और शांतिपूर्ण परिवर्तन का एक साधन माना है। इसके अतिरिक्त भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से यही आशा जताती है कि वह वार्ताओं और प्रत्याशों द्वारा भेदों को कम करने के लिए देशों को सम्मिलित करने में सक्रिय भूमिका निभाए। भारत ने जो है तृतीय विश्व युद्ध के देशों के विकास में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका की वकालत भी की है। भारत का विश्वास है कि गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वे संयुक्त राष्ट्र में एक समर्थक और रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, जिससे कि महाशक्तियों के ऊपर संसार की अपनी इच्छा अनुसार आकार देने पर अंकुश लगा सकता है। 1950 के आरंभ में ही भारत ने निःशस्त्रीकरण को विकास के विधि लक्ष्य से जुड़ा हुआ भी था। भारत ने सदैव ही निःशस्त्रीकरण का ही विचारधारा उठाया था और नेहरू जो थे सबसे अच्छा विचारक में से थे, क्योंकि नेहरू हमेशा ही निःशस्त्रीकरण को जो है प्रोत्साहित करते थे और उनका विचार था कि हमें शांति में जीवन यापन करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम पंचशील, ठीक है, नॉन एग्रीमेंट के बारे में पढ़े, यानी नाम्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया, हमने भेदभाव, संयुक्त सशक्तिकरण, सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया और जाना भी। ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगला टॉपिक और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।